Hello students. Today I am making a video on the topic Russia as a new center of power, as a contemporary center of power from your first book, Contemporary World Politics. First of all, I have given an introduction what is Russia actually. Russia, you all know introduction me, is a successor of USSR. After this disintegration of the USSR, the whole power that goes into the hand of this Russia in 1991. Russia GDP is currently 11th in the world. Its national income is 11th in the number, and Russia has a reserves of mineral, natural resources, gases that make it so powerful at global level. Russia is a permanent member of UN Security Council. Russia has emerged as strong successor of the USSR, and after disintegration of the USSR. Now, Russia is a nuclear state with a huge stock of sophisticated weapons. Russia's economy is a mixed and a transitional economy of upper middle income. Russia is also a permanent member of UN Security Council called the P5. This is just an introduction about Russia at present. Now, here I have mentioned some basic factors that are responsible for making Russia as an alternate center of power, and it is how Russia is emerging as a superpower at the global level. The first at the economic level P. Russia as a economic power. Now, first point here is Russia has an abundance of oil, natural gases, precious metals, that which make up a major share of Russia's export. So Russia is exporting abundance of its oil, natural gases and various precious metal to the other countries in the world and getting a huge GDP. Now second point is Russia is the fifth largest national country in the Europe and 11th largest national uh, nominal GDP in the world and is the sixth largest purchasing power parity. It means the Russia जो है in the European countries में it is the fifth largest country, and its GDP at the world level पे it is 11th in number. And at the among the third point I've mentioned, the World Bank estimates that the total value of the Russia's natural reserves is about $75 trillion US dollar. So it means World Bank has also said that Russia is having a lots of natural resources and its value is about $75 trillion. Russia relies on energy revenues to derive most of its growth. Russia is having most of the income from its energy resources. Fourth point, Russia is considered as an energy superpower. It has a world largest proven natural gases reserves and largest exporter of the natural gas and second largest producer of the petroleum also. It means that Russia जो है, it is known for the energy superpower. It is exporting its natural gas to the world and it is producing the petroleum at the second level in the world. So these are the economic features that makes Russia a superpower. Now second, how Russia is becoming a super power at global level from the military point of view. So Russia as a military power, Russia military strength is that it is ranked world's second powerful and most powerful country in the Europe, also in the world. Also in the world, it is the second largest and most powerful country in the Europe. Now, second point is Russia is a nuclear state with a huge state of sophisticated weapons. Now, this is the military point of view. Now, next is the what are the political powers that make Russia a superpower? First is that Russia is a great power as well as a regional power and has been characterized as a political superpower. Second point, it is an active global partner in the ASEAN countries also. Third point, it is an active member of the BRICS also. Fourth point, it is 11th
leading member in the Commonwealth of Independent States. And Putin has dominated the political system since 2000, and Russia is a permanent member of the UN Security Council P5. So these are the major points that makes Russia a supranational or an alternate center of power. Now in हिंदी में शुरू में सबसे पहले रशिया के बारे में कुछ परिचय देना है कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो रशिया जो है इसका उत्तराधिकारी बना। रूस का जीडीपी दुनिया के 11वें स्थान पर है। रूस के पास बहुत सारे खनिज पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन और गैसों का भंडार है जो विश्व में से शक्तिशाली देश बनाता है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदाई सदस्य भी है और 1990 के सोवियत संगठन के विघटन के बाद, यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस जो है ये मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभरा है। रूस एक परमाणु राष्ट्र है जिसके पास आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। रूस की अर्थव्यवस्था उच्च मध्यम आय की मिश्रित एवं समकालीन अर्थव्यवस्था है, यानी कि न्यू मिक्स्ड अर्थ इकोनॉमी है। और रूस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य भी है, P5 भी इसे कहा गया है। तो कौन से कारण हैं जो रूस को एक मजबूत या शक्तिशाली विश्व तौर पे उभार रहा है? तो सबसे पहले आर्थिक शक्तियाँ कौन सी है रूस के पास? रूस के पास बहुत सारे तेल, प्राकृतिक गैस और कीमती धातुएं हैं जिनका निर्यात करके, एक्सपोर्ट करके ये बड़ी मात्रा में अपनी आय जो है कमा रहा है। दूसरा पॉइंट, रूस जो है यूरोप की 5वीं सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 11वीं बड़ी जीडीपी की अर्थव्यवस्था में माना जा गया है। तीसरा, विश्व बैंक ने इसका अनुमान लगाया कि इसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है जिसका मूल्य $75 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के कीमत के बराबर इसकी माना गया है। फोर्थ पॉइंट, रूस के पास ऊर्जा महाशक्ति बहुत ज़्यादा है। ये प्राकृतिक गैस के पास इसके भंडार हैं और इस प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है और पेट्रोलियम का भी उत्पादन करके दूसरे देशों को इसका निर्यात कर रहा है। तो ये थे कि इसके आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसके कुछ कारण। नाउ सैनिक शक्ति जो रूस के पास है कि सेना में भी इसके पास शक्तिशाली जो है सेना है इसकी पूरी। रूस की सेना पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर मानी गई है और इसके पास दूसरे नंबर पे बताया कि इसके पास परमाणु सप्रण राष्ट्र कहा गया है। इसके पास सारे आधुनिक हथियार जो है, विशाल भंडार है इसके पास, जो रूस को एक सैनिक शक्ति के इसकी मजबूत करता है। नाउ थर्ड जो मैंने लिया है रूस की राजनीतिक शक्ति। रूस की कुछ राजनीतिक शक्ति जैसे विश्व में ग्लोबल लेवल पे इसे मजबूत वैकल्पिक राष्ट्र के रूप में बता रहा है। पहला मैं ये बताया कि राजनीतिक तौर पे ये प्रमुख महान शक्ति होने के साथ साथ एक क्षेत्रीय शक्ति भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये आसियान में भी बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ब्रिक्स में भी इसके सक्रिय सदस्य हैं ये, और ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS का, ठीक है, 11वें स्वतंत्र राष्ट्रों का जो है उसमें भी पूरी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। और 2000 में पुतिन जो है वालोदिन पुतिन, ठीक है, रूस की राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है उसके ऊपर हावी हुई पड़ी है। और लास्ट नॉट लीस्ट मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये सदाई सदस्य है और इसको P5 भी कहा गया है। इसके बाद कुछ मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रिपब्लिक्स रशिया में कितनी है, दैट इज़ 22। इसमें रूस में गणराज्य कितने हैं, वो 22 हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़, ठीक है, रशिया जो है
पॉपुलेशन के हिसाब से आबादी के तौर पर ये वर्ल्ड लेवल पे 9th कंट्री जो है, दैट इज़ द 9th कंट्री इन द मैटर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज़ द लार्जेस्ट रिपब्लिक इन रशियाज एरिया वाइज. रशिया की जो एरिया वाइज क्षेत्र के हिसाब से, रूस के जो क्षेत्रफल के हिसाब से, वो कौन सा गणराज्य है जो बड़ा है. सबसे लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया कौन सी है एरिया वाइज, दैट इज़ बक्शकोस्तान. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ फेडरल सिटी ऑफ रशिया, दैट इज़ द कजान. तो रूस की कौन सा ऐसा संघ शहर है जो संघीय नहीं है, जहाँ पे फेडरलिज्म नहीं है, जहाँ पे शक्तियों का विभाजन नहीं है, दैट इज कजानो. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो डाला मैंने, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन हिस्ट्री. रशिया में चुनाव के साथ जो पहला प्रेसिडेंट जो है वो पूरे निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन रूप से चुना गया राष्ट्रपति कौन था, डायरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया हिस्ट्री में, वो है बोरिस येल्सन. नाउ सिक्स क्वेश्चन इज विच ऑफ द वन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रशिया. रशिया की कौन सी माउंट है जो सबसे हाईएस्ट है. हाईएस्ट मतलब कि उच्चतम बिंदु रूस का कौन सा है, दैट इज़ माउंट एल्ब्रस. माउंट एल्ब्रस. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. रशिया का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये तो सबको पता है, व्लादिमीर पुतिन. व्लादिमीर पुतिन. नाउ एट्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड रशिया पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएसएसआर. तो रशिया जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा होता था, ये कब इसने अपना स्वतंत्र घोषण किया, वो ये है 1990. रूसी संसद ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा यूएसएसआर से कब की, 1990 में. नाउ नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन इज हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ रशिया. रशिया का जो राष्ट्रगान है उसकी रचना किसने की, अलेक्जेंड्रा अलेक्जेंड्रोव. अलेक्जेंड्रोव. नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश इन रशिया. रशिया में वर्ल्ड का सबसे पहला, विश्व का पहला बिजली संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो परमाणु जो केंद्र है वो उसकी स्थापना कहाँ पे हुई, दैट इज़ ओब्निस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट. ओब्निस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट. Now 11th question, who is regarded as the founder of the modern Russian literary language. आधुनिक जो रूसी साहित्य भाषा है उसका संस्थापक किसको माना गया है, तो उसका आंसर है एलेक्जेंडर पुश्किन. अलेक्जेंडर पुश्किन. Now 12th question, which day is celebrated as a defended day of the fatherland of Russia. दैट इज़ 23 फरवरी. ठीक है, रूस की जो फादरलैंड के रूप में, यानी कि जो रूस एज ए इंडिपेंडेंस डे जो मनाता है, तो कौन से रूप में फादरलैंड ऑफ द कंट्री मनाता है, वो है 23 फरवरी. नाउ नेक्स्ट, रशिया का जो मीर स्पेस स्टेशन है, द रशिया स्पेस स्टेशन मीर ऑपरेटेड फ्रॉम, किस ईयर से ऑपरेट किया उसने, वो है 1986 से 2001 में. रूसिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, स्पेस स्टेशन, ठीक है, वो किस ईयर तक उसने कार्य किया, 1986 से 2001 तक. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द रशिया ड्यूमा. रशिया की जो पार्लियामेंट है उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 450. रशिया राज्य की जो डूमा है उसकी कुल सीटें कितनी है, 450. विच वन ऑफ द इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया. रशिया के सबसे पुराना जो कह दो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, दैट इज़ द सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग राज्य विश्वविद्यालय. ठीक है, ये कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन है जो एमसीक्यू मैंने इसमें से लिए हैं, बट दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट
as I'm also saying this thing. But the most important question that is expected from this topic is how Russia is emerging as a supranational alternative center of power. कि आप कैसे कह सकते हैं कि रूस सत्ता के सुप्रानेशनल वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे इसे शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम दिस टॉपिक रशिया एज अ सुपरनेशनल पावर that compare and contrast the shock therapy of the USSR with the open door policy of the China. That is also expected. So shock therapy is how these ex-USSR countries they transit from the Soviet economic model to the democratic capitalist economic model. And the open door policy of the China ने from 1978 how China had opened its economy and linked relation with the world other countries starting from the USA and with the other countries how it has opened. So these two questions are very important from this topic. अब हिंदी में बता रही हूँ कि एक तो आपने ये आना है रूस किस तरह से एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में विश्व में एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो इसके बारे में जो ऊपर अभी पॉइंट्स आपको बताए थे वो आपने लिखने हैं। और अगला ये बताया कि मैंने शॉक थेरेपी जो रूस की थी उसकी तुलना करनी है चीन की ओपन डोर पॉलिसी के साथ, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप सबको ये समझ आ गया ये टॉपिक कि किस तरह रूस जो है एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो उभर रहा है। थैंक यू वेरी मच।